So concentration of solution, this topic we'll see. What is the meaning of concentration of any solution? Concentration of solution. So we know that solution कैसे बना होता है? Solution is made up of two particles. One is a solute particle and another one is a solvent particle. बराबर है ना? Okay, because the solution जो भी बनता है, okay, solution जो भी बनता है, उसमें एक ही सब्सटेंस से सॉल्यूशन नहीं बनता है. ओके, इट रिक्वायर्स two substance, one is a solute and another is a solvent. The phases, the state of matter for the solute and the solvent may be different. कुछ भी हो सकता है, solute liquid भी हो सकता है, solvent solid भी हो सकता है, solute सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी सॉलिड हो सकता है. ओके, दैट यू विल स्टडी इन 12th स्टैंडर्ड. ओके, सो दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन व्हिच इज मेड अप ऑफ अ सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट. ओके, दोनों को कंबाइन करने के बाद क्या बनता है, क्या फॉर्म होता है? सॉल्यूशन फॉर्म होता है. नाउ वी व्हाट वी वांट concentration of solution. So concentration of solution will be purely depends on what, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये दोनों पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा. ओके, उनके क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा. So majority of the reactions in the laboratory that are carried out in the solutions, we know that most of the chemical reaction that they carry out by within solutions are carried out in solutions. So it is very important to understand how the amount of substance is expressed. So the concentration of solution or the amount of substance that is present in a given volume of a solution, it can be expressed in the following ways. So there are different ways to express the amount. Okay, amount of, we can say, solute particle. Okay, amount of the solvent or amount of complete this solution. Okay, because solution consists of these two particles, solute and the solvent. So following ways, the very first way is to represent mass percent or weight percent. कैसे represent कर सकते हैं हम लोग? mass percent और weight percent. mass percent या फिर weight percent से हम लोग उसको represent कर सकते हैं. And that is considered as W by W percentage. आप लोग चेक करो. ओके, कहीं डिफरेंट सॉल्यूशंस में आप लोग ये, आपको ये दिखाई देगा, ये यूनिट दिखाई देगा, W upon W percentage. It is for what? It is for mass percentage, okay, or weight percentage, okay, which is represented by W percentage. देखा है क्या कभी, ऑब्जर्व किया है क्या आपने? ये कभी कहाँ पे लिख के होता है? किसी क्रीम के ऊपर वगैरह आप चेक करो, बराबर है ना, ये लिखा होता है. ओके, क्वांटिटी के ऊपर, उसके बाद में ओके एक सब्सटेंस लिखा रहेगा कोई भी, उसके बाद में लिखा होगा W upon W percentage. हैव यू ऑब्जर्व दिस? ऑब्जर्व किया क्या आपने कभी? यस, ऑब्जर्व किया क्या कभी आप लोगों ने? W upon W percentage ऐसे लिखा होता है. ओके, आप लोग चेक करो. ओके, घर में कोई क्रीम वगैरह होगा तो चेक कर सकते. ओके, yes, second is about the mole fraction. Second is about the mole fraction. Mole fraction में हम लोग उसको represent कर सकते हैं. Okay, third one is about the molarity. वो क्या है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. Okay, so the next is molarity में भी represent कर सकते हैं. Okay, so concentration of solution can be represented in terms of mass percentage or weight percentage, or in terms of mole fraction, in terms of molarity capital M में represent करते हैं. And the last one, okay, that is called as the molality. Okay, I don't know whether you have heard this molality. There is a difference between molarity, RITY, and molality, LITY. Okay, which is represented by small m से represent करते हैं. समझ में? So these are the four ways by which the concentration of solution can be represented. Now we'll see what is the meaning of mass percentage. Mass percentage का meaning क्या है वो हम लोग discuss करेंगे. Okay, very first parameter is what? Mass percentage in the concentration of the solution. So concentration of the solution in terms of mass percentage. So very first is mass percentage. Okay, mass percent. Okay, mass percent. So what is the meaning of mass percent? So mass percent is what?
It is obtained by using the following relation, that is mass percent is given by mass of solute divided by mass of solution. Okay, so mass percent it is given by, so I will write here, mass percent is given by mass of solute. Okay, mass of solute particle, okay, which is present in the solution. Okay, जो solute present है किसमें, solution में, divided by mass of solution, complete solution का mass. Okay, so mass of solute divided by mass of solution multiply by 100, because we want that in terms of percentage. वो किस में चाहिए हमें, परसेंट में चाहिए. Okay, so to understand this, okay, consider the numerical number 2 point, problem number 2.16. Look at the problem number 2.16. Am I audible to all of you? Yes. Okay, problem number 2.16. In this problem we will find out mass percentage. देखो mass percentage क्या होता है, mass of solute upon mass of solution. जिनको भी क्लियर नहीं है देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख के रख रहा हूँ. Solution is made up of solute particle plus solvent particles. बराबर है ना? So solution is made up of solute particle and solvent particle. Generally जो solvent है वो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, okay, and solute कम क्वांटिटी में generally होता है, general ना, general. So solution which forms a solution. Okay, so how much is the mass of solute? Okay, how much is the mass of solute which is suppose dissolving in a solvent, and mass of solution. Solution is made up of solute and the solvent. So in this way we will solve this very first problem. A solution is prepared by adding 2 gram of substance A. Okay, mention किया है, कितनी क्वांटिटी दिया है, 2 gram of substance, 2 gram of substance A. Okay, substance A add किया है, okay, to 18 gram of water. Okay, कितने ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर. Okay, 18 gram of water. Okay, 18 gram of water. Calculate mass percent of a solute. देखो अभी इसमें solute कौन सा है, ये है solute. इसमें क्या है solute, solute है हमारा substance A, और water क्या है, water is acting as a solvent. water क्या हो रहा है, solvent act हो रहा है. सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा. चलो, मास ऑफ सॉल्यूशन. सो मास ऑफ सॉल्यूशन, ओके, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, यस, सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्लस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. ओके, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यस, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट इज अवर सब्सटेंस ए. ओके, कितना है उसका क्वांटिटी, 2 ग्राम्स. वेरी गुड. व्हाट इज द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन सा है इसमें, वाटर इज अ सॉल्वेंट. कितना है, ओके, 18 ग्राम है, बराबर, 18 ग्राम. ओके, 18 ग्राम ऑफ वाटर. सो यस, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया इसमें, यस, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया इसमें, यस, मास ऑफ सॉल्यूशन इज हाउ मच, 20 ग्राम. ओके, 2 plus 18 दैट इज 20 ग्राम. सो मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया हमें. हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट भी है, ये देखो मास ऑफ सोल्यूट है हमारे पास, बराबर है, मास ऑफ सोल्यूट है. So now we will write down the formula directly, that is mass percent, that is mass percent. Mass percent is equals to, that is mass of solute, okay, mass of solute divided by mass of solution, mass of solution multiply by 100. okay, so mass of solute क्या है हमारा, 2 grams, बराबर है, 2 gram is the mass of solute, and mass of complete solution कितना है, 20 grams है, बराबर है ना, that is 20 grams multiply by 100, multiply by 100. So how much is the percentage, okay, how much is the percentage, yes, 2 it is 10%, it is 10%. क्या है 10%, it is a mass percent, it is a mass percent, mass percent. ओके, वो मास परसेंट क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, बराबर है ना. मास ऑफ सोल्यूट का जो प्रपोर्शन है एज compared with the mass of solution, that is what, 10%, that is what, 10%. So in this way mass percentage is calculated. Okay,
आप वेट भी निकाल सकते हो। आप क्या निकाल सकते हो? वेट परसेंट भी निकाल सकते हो। वेट परसेंट कैसे निकालोगे फिर? यस, वेट परसेंट कैसे निकालोगे? कैसे लिखोगे उसका फॉर्मूला? दैट इज वेट ऑफ, यस, वेट ऑफ सोल्यूट, बराबर ना? वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय, यस, वेट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, वेट ऑफ सॉल्यूशन लेके भी आप लोग, ओके, ऐसे भी कैलकुलेट, इफ यू हैव द वेट, ओके, इफ यू हैव द वेट। समझ में आया सब लोगों को? सो दिस इज द मास परसेंटेज। नाउ द नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। ये सारे टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मास परसेंटेज, मोल कंसेप्ट, मोलार मास कंसेप्ट, मोल फ्रैक्शन कंसेप्ट, मोलारिटी, मोलालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ये कंसेप्ट बिल्कुल अभी इसी लेवल में क्लियर, बोलो बोलो बोलो। यस, बिकॉज नहीं नहीं नहीं, वो उसकी क्वांटिटी है मास की, वो सोल्यूट की क्वांटिटी है जो सॉल्यूशन में है, बराबर है? जो सोल्यूट की क्वांटिटी है सॉल्यूशन में है। अभी देखो इसमें जो है सॉल्यूशन में किसकी क्वांटिटी रहेगी? सॉल्वेंट भी है उसमें, बराबर है? सो मास परसेंटेज इज कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सोल्यूट। यस, सो हम लोग ने देखो अभी यहाँ पे मास परसेंट ऑफ सोल्यूट निकाला है। अगर मान लो पूछा, अगर मान लो पूछा आपको निकालना है किसका? मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, अगर पूछा आपको निकालने के लिए तो आप निकाल सकते हो क्या? देखो कैसे निकालोगे? मास ऑफ सॉल्यूशन, आपके पास सॉल्यूशन का मास है और आप क्या लो? मास ऑफ सॉल्वेंट ले लो, निकल के आ जाएगा। इसमें भी आप निकाल सकते हो। मास ऑफ सोल्यूट निकाला हुआ है तो हम लोग देखो मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। कितना है मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट? इसमें सॉल्वेंट का कितना क्वांटिटी है? बोलो, सॉल्वेंट का कितना क्वांटिटी है? 18 ग्राम्स। ओके, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 20 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय, ओके, सो मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करो आप लोग, जितना भी आंसर आ रहा है, ओके, जितना भी आंसर आ रहा है आप लोगों का, ओके, दैट विल बी, कितना आंसर आएगा? दिस इज नो, बराबर है ना? 0 0 कैंसिल हो गया यहाँ पे, 2 9 18, 9 इंटू 10 इज 90, सो 90%, बराबर है ना? मास ऑफ, मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितने क्वांटिटी में है इस सॉल्यूशन में? यस, सॉल्वेंट कितने क्वांटिटी में है? इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि कितने क्वांटिटी में सॉल्वेंट है अगर सॉल्यूशन के कंपैरेटिव, बराबर है ना? समझ में आया ना? कितने क्वांटिटी में सॉल्वेंट है? प्लीज म्यूट, म्यूट योर वॉइस, म्यूट करो बिकॉज आवाज ये आ रहा है बहुत। So mass of solvent divided by mass of solution. So how much is the quantity of solvent as compared with the mass of solution? समझ में आया? कितने क्वांटिटी है? 90% है। कितने क्वांटिटी है? 90% है। समझ में आया सब लोग? निकाल सकते हैं हम लोग। ओके, सो वी कैन फाइंड आउट। ओके, सो मास ऑफ सोल्यूट भी निकाल, मास परसेंट ऑफ सोल्यूट भी निकाल सकते हैं हम लोग। ओके, मास परसेंट ऑफ, दिस इज द सोल्यूट, मास परसेंट ऑफ द सोल्यूट। ओके, एंड दिस इज मास परसेंट ऑफ अ सॉल्वेंट। ओके, यस, समझ में आया सब लोगों को? ओके, सो मास परसेंट, then next is a mole fraction, then next is a mole fraction. Okay, next term is the mole fraction. So what is the meaning of mole fraction? This will give in terms of number of moles. Okay, so उनका fraction मिलेगा हमें, उनका ratio मिलेगा. So second is mole fraction. Okay, mole fraction. How many number of moles that are present? Okay, so mole fraction. So it is the ratio of number of moles. Okay, it is the ratio of number of moles of particular component of a solution. Okay, अगर मान लो सॉल्यूशन है दो कंपोनेंट से बन रहा है, सपोज, ओके, सॉल्यूशन है दो कंपोनेंट से बन रहा है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन विच इज सपोज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, कंपोनेंट वन, कंपोनेंट ए से बन रहा है, और जो दूसरा जो कंपोनेंट है, ओके, जो अनादर जो कंपोनेंट है वो सपोज बी है, बराबर है? दिखाई दे रहा है सब लोगों को?
So solution is made up of component A and component B. Okay, आप इसको सोल्यूट और सॉल्वेंट भी बोल सकते हो क्योंकि वो सॉल्यूशन वही उसी से बना हुआ है, एक सोल्यूट है और उसमें दूसरा है सॉल्वेंट. ओके, सो if you want to find out the mole fraction for component A, बराबर है कि क्या फाइंड आउट करना है आपको, मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है. मोल फ्रैक्शन किसका फाइंड आउट करना है आप लोगों को, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यू हैव टू फाइंड आउट. ओके, किसका, ए का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है. सो हाउ यू विल फाइंड आउट, depends on number of moles of A divided by number of moles of A plus number of moles of B, number of moles of B. अब समझ में कैसे, what is this n is representing, n is representing the number of moles, n is representing, this small n is representing number of moles. Okay, number of moles for this. Okay, and similarly you can find out the mole fraction, you can find out the mole fraction of component B. Okay, वो कैसे निकलेगा, number of mole fraction of B divided by Na upon Nb. दिखाई दिया सब लोगों को. So in this way it is. So generally जो हमारा जो solution जो होता है, okay, जो हमारा जो solution जो होता है, that is made up of solute plus solvent. Solute plus solvent होता है. So we can represent mole fraction, we can represent mole fraction. ये भी equations हमें बहुत बार use करना है. There is a chapter solution. Okay, chapter है solution chapter है. So in 12th standard, okay, there you have to use this. Okay, mole fraction. Suppose mole fraction of a solute. Okay, so mole fraction of solute will be what? It is number of moles of solute divided by number of moles of solute plus number of moles of solvent. Okay, and similarly mole fraction अगर हमें किसका निकालना है, solvent का निकालना है, then it will be what, number of moles of solvent divided by number of moles of solute plus number of moles of solvent. Okay, so what is this, ये जो नीचे जो टर्म लिखा है वो क्या है, this is nothing but, ये वाला क्या है, this is nothing but total number of moles of a solution. This is nothing but total number of moles of solution, moles of solution है, बराबर है, which is comprises of number of moles of solute plus number of moles of solvent. समझ में आया सब लोगों को, what is this mole fraction? So mole fraction for these two component, इसके लिए भी निकाल सकते हो आप, इसके लिए भी निकाल सकते हो. Okay, so now mute कर लो. Yes, then next is the, yes, next concept is about the molarity. Okay, time कितना हुआ देख लेते हैं एक बार, time है ना अभी. Yes. So the next concept is about, there's no any problems given, okay, based on this mole fraction. Okay, आप लोग exercise में देख सकते हो, end exercise में होगा उसमें. Yes, now the next concept is about molarity. बहुत ही important है because concentration, okay, concentration of the solution is most of the time will be represented by molarity. Okay, क्या है इसका pronunciation, molarity, M-O-L-A-R-I-T-Y. Okay, molarity. So most of the concentrations of the solutions that are expressed with this term, okay, that is called as the molarity. Okay, so molarity, so this is very much important. Okay, so which is depends upon the temperature. The third parameter, the concentration of the solution is depends upon molarity. Okay, which is represented by capital M. बराबर है ना, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके, सो दिस कैपिटल एम इज जनरली व्हाट, मोलैरिटी इज. ये क्या है, कैपिटल एम क्या होता है, मोलैरिटी होता है. सो व्हाट इज द मोलैरिटी, इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिट. बराबर है, मैंने जैसे ही बोला आप लोगों को कि ये जो यूनिट है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड है. ओके, उसको यूज करते हैं. एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. Okay, it is defined as number of moles of solute which is dissolved in a particular volume, this
present in 1 liter of solution. Okay, present in 1 liter of solution. Present in 1 liter 1 liter of a solution. Okay, so ये देखो फिर से क्या है, what is molarity? It is the number of moles. किसके? solute के. ओके किसमें? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में. ओके तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द यूनिट? क्या रहेगा इसका यूनिट? सो मोलारिटी विल बी व्हाट? मोलारिटी विल बी, यस, कैपिटल एम विल बी व्हाट? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. Number of moles of solute that is present in 1 liter of solution. Okay, 1 liter of solution. So 1 liter of solution is nothing but its volume. Okay, its volume. So volume of solution in liters, we will represent it what? Volume of solution in liters. Volume of solutions in liters. इसका यूनिट क्या हो जाएगा बोलो आप लोग मुझे? नंबर ऑफ मोल्स. यस, number of moles, that is mole. Okay, mole per liter. Okay, mole per liter is the unit. Okay, mole per liter is the unit. You have to remember this. Okay, इसका मीनिंग क्या है? How many number of moles are present in 1 liter of solution? Okay, how many number of moles are present in 1 liter of solution? That is represented by the molarity. Okay, generally लिखा होता है any solution. Okay, any solution. Okay, ऐसे लिखा होता है in any solution और ब्रैकेट में लिखा हो 0.01 कैपिटल M. ओके तो सॉल्यूशन के आगे जब भी ये लिखा होता है उसका मीनिंग ये है दैट इट इज द कॉन्सेंट्रेशन. इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन. क्या कॉन्सेंट्रेशन इज सॉल्यूशन का? 0.01 मोलैरिटी. ओके इसका मीनिंग क्या है? 0.01 नंबर ऑफ मोल्स दैट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन. समझ में आया ना सब लोगों को? so that's why you must be able to identify okay this term. समझ में? जनरली ऐसे ही लिखा होता है एंड मोस्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय मोलैरिटी ओनली. मोलैरिटी से ही रिप्रेजेंट करते हैं. ओके सो we will see problem number 2.17. 2.17 प्रॉब्लम देखते हैं. प्रॉब्लम नंबर 2.17 देखो क्या पूछा है उसमें. calculate the molarity of sodium hydroxide in the solution. Okay, solution prepared by dissolving 4 gram in enough water. Okay, to form 250 ml of the solution. क्या हो रहा है? 250 ml of solution prepared हो रहा है when it is 4 gram of NaOH. Okay, so yes, molarity is what? Number of moles of solute. Okay, number of moles of solute हमें निकालना है. So yes, कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट? यस, इस केस में मोलैरिटी इज व्हाट? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ. अभी बार बार लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे. ओके आप देखो यहाँ पे. सो हाउ वी विल फाइंड आउट मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. कैसे निकालेंगे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट? इसमें देखो यस 4 ग्राम इज गिवन. कितना मास दिया है? मास ऑफ सोल्यूट. यस, मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ है? मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ है? 4 ग्राम. फिर से एक बार पढ़ता हूं. कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH. यानी NaOH क्या है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ सोल्यूट. ओके उसकी क्वांटिटी कितनी है? 4 ग्राम. ओके विच इज डिसॉल्व्ड इन अ वाटर. ओके to form 250 ml of solution. Okay, so how much is the volume of solution? Volume of solution कितना है? 250 ml है. Okay, volume of solution. चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले गिवन क्वांटिटी. मास ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन 4 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? यस 250 ml मिलीलीटर. कितना दिया हुआ है? 250 मिलीलीटर. हमें किस में चाहिए? लीटर में चाहिए. बराबर है. क्या करेंगे फिर? डिवाइड बाय 1000 करेंगे ना. यस 250 डिवाइड बाय 1000 करेंगे. ओके तो हमें क्या जाएगा? लीटर में आ जाएगा. इसका मीनिंग क्या है? 0.250. बराबर है. वी वांट इन टर्म्स ऑफ लीटर.
ओके, दैट इज 0.25 लीटर्स। आ गया वॉल्यूम लीटर्स में। अभी देखो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा आंसर इसका, जल्दी बोलो। यम मास इज इक्वल टू, यस, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, बराबर है ना। इक्वेशन पता है सब लोगों को, यस। मास, ओके, मास हमें पता है, मास ऑफ सोल्यूट पता है हमें, मास ऑफ सोल्यूट पता है। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ सोल्यूट निकालने हैं, नंबर ऑफ, सॉरी, मोल्स ऑफ सोल्यूट। ओके, वी वांट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। यस, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोलर मास किसका आएगा, मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का। निकाल सकते हो क्या सोडियम का मोलर मास, सोडियम का कितना एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास है वो देखो, ऑक्सीजन का कितना है, हाइड्रोजन का कितना है, उनको ऐड करो। ओके, सो द आंसर इज, ओके, सो सोडियम का कितना है, सोडियम का कितना है, यस, सोडियम का कितना है, मास कितना है, ओके, सोडियम का कितना है, Na का कितना है, 23, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। चेक करो कितना आ रहा है, 23 प्लस 16 प्लस कितना आ रहा है, 40 आ रहा है ना। 6 प्लस 3 प्लस 1 इज 10। ओके, यस, 40 ग्राम, 40 ग्राम पर मोल। मोलार मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चलो तो देखो, मास ऑफ सोल्यूट हमारे पास है तो हमें नंबर ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं। सो देखो यहाँ पे n इज इक्वल टू, n विल बी इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। स्मॉल m कितना है, मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 4 ग्राम्स। ओके, और कैपिटल M कितना है, कैपिटल M, यह मैंने मोलार मास, मोलार मास कितना है, 40 ग्राम्स पर मोल, मोल बराबर है ना, 40 ग्राम्स पर मोल, इतना उसका मोलार मास है। मोलार मास इज रिप्रेजेंटेड विथ ग्राम पर मोल। ओके, सो देखो यहाँ पे ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया। ओके, सो कितना आंसर आया इसका, 0 पॉइंट, यस, जितना भी जो आंसर आ रहा है 0.1। ओके, 0.1 मोल। ओके, मिल गया आंसर आप लोगों को, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। ओके, सो नाउ यू कैन यूज दिस रिलेशन, मोलैरिटी, कैपिटल M इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। कितने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, 0.1 मोल्स ऑफ सोल्यूट। देखो इस केस में मैंने आपको निकाल के दिखाया प्रॉपरली। ओके, ओके, नंबर ऑफ मोल्स निकाल के दिखाया ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ लीटर कितना है, 0.250 liters, 0.250 liters. Okay, so the answer is 0.4, बराबर है। When you will solve this, answer is 0.4 mole per liter, mole per liter. Okay, mole per liter, or you can say that, okay, because mole per liter is nothing but the molarity, so you can represent that is 0.4 capital M. Okay, so this is the concentration, you can say this is the molarity. But you have to remember about the molarity, that the molarity of a solution is depends upon a temperature. Okay, this is depends upon temperature, depends on temperature. Okay, ये याद रखो आप लोग हमेशा, it is depends upon temperature, because this is a quantity volume. Okay, volume of a solution in terms of liter, so that's why this molarity depends upon the temperature, because volume of a solution is a temperature dependent. Okay, volume of a solution ये क्या है, ये temperature dependent quantity है। ये क्या है, temperature dependent quantity है। this volume of a solution, this will vary as the temperature is varying, समझ में आया? So that's why you have to remember molarity is a temperature dependent. क्या बोलोगे, yes, how you will remember this, that molarity is what, molarity is temperature dependent quantity, molarity is what, temperature dependent quantity. Why? बिकॉज मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, टेम्परेचर अगर हमने इसका इंक्रीज कर दिया, अगर मान लो सोल्यूशन है
उसमें अगर हमने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, बराबर है, वेपराइज हो जाएगा. सो व्हेन इट विल वेपराइज, व्हाट अबाउट इट्स कॉन्सेंट्रेशन? सो इट्स कॉन्सेंट्रेशन विल वैरी, and that is the reason that molarity is a temperature dependent quantity. This you have to remember always. Okay, molarity is a temperature dependent quantity. Okay,